નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો કે ન્યૂઝ ને હું છું જય શર્મા। તો નજર કરીએ હેડલાઇન્સ પર। નેતાજીના કાર્યકલાપો વધ્યા, લાગે છે હવે ચૂંટણી ઢુકડી છે। આ શેરને ચરિતાર્થ કરતી પ્રવૃત્તિઓ ગુજરાતમાં આજકાલ વધી છે। અધૂરામાં પૂરું ભગવાન રામના નામે તરવા માટે હવે પથ્થરો પણ થન ગણે છે, એવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। નાટોના મહાસચિવ જેન્સ સ્ટોલ્ટનબર્ગે યુક્રેન યુદ્ધ બાદ સ્વીડન અને ફિનલેન્ડ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી। યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિમીર ઝેલેન્સ્કીએ જણાવ્યું કે કીવ ક્ષેત્રમાં લગભગ 900 લોકોની સામૂહિક કબર મળી આવી। પાકિસ્તાનમાં 61 વર્ષ જૂના રેકોર્ડ તોડતી ગરમી વચ્ચે ત્રાહિમામ પોકારી ગયેલી જનતાએ બેવડો ફટકો પડ્યો। કાળઝાળ ગરમી અને ગરમીની લહેર વચ્ચે ઘણા રાજ્યો હાલમાં વીજ સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે। દેશના 12 થી વધુ રાજ્યોમાં વીજળીની માંગ અત્યાર સુધીના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા। નજર કરીએ સમાચાર પર વિસ્તારથી। તો નેતાજીઓના કાર્યકલાપો વધ્યા છે, લાગે છે હવે ચૂંટણી ઢુકડી છે। આ શેરને ચરિતાર્થ કરતી પ્રવૃત્તિઓ ગુજરાતમાં આજકાલ વધી છે। અધૂરામાં પૂરું ભગવાન રામના નામે તરવા માટે હવે પથ્થરો પણ થન ગણે છે, એવી પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। ઉત્તર પ્રદેશ સહિત 5 રાજ્યોની ચૂંટણી બાદ તમામ રાજકીય પક્ષોની નજર હવે ગુજરાત પર છે। ચૂંટણી આવી એટલે દર વખતની જેમ ભાજપને ભગવાન રામ યાદ આવે, તે સ્વાભાવિક છે। પરંતુ તેમાં કોંગ્રેસના પ્રદેશ કાર્યકારી અધ્યક્ષ અને યુવા નેતાએ સોગઠી મારી છે। ભગવાન રામના નામે સત્તારૂઢ થનારો ભારતીય જનતા પક્ષ હવે અન્ય પક્ષોની અને આગેવાનોની રામ ભક્તિથી જાણે અકળાયો છે, ગિન્નાયો છે તેવી સાબિતી આપતો એક કાર્યક્રમ યોજાવા જઈ રહ્યો છે। સમગ્ર બાબત સમજવા માટે કોંગ્રેસના પ્રદેશ કાર્યકારી અધ્યક્ષ હાર્દિક પટેલના પિતાની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે યોજાયેલી શ્રદ્ધાંજલિ સભાથી કરીએ। હાર્દિક પટેલના પિતાની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે તાજેતરમાં જ શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ યોજાયો। હાર્દિકે ભાજપના નેતાઓને પણ આમંત્રણ આપ્યું। એટલું જ નહીં, હાર્દિકની ભગવાન રામની એક તસવીર હાથમાં હોય તેવો ફોટો પણ વાયરલ થયો। અધૂરામાં પૂરું હાર્દિકે એવો પણ તાજેતરમાં જ દાવો કર્યો હતો કે મારાથી વધુ મોટો હિન્દુત્વવાદી નેતા નથી। આમ જે નામથી ભાજપ હતો તે જ ભગવાન રામ અન્ય પક્ષોના પણ આરાધ્ય બની રહ્યા છે। હકીકત પણ એવી જ છે, ભગવાન રામ ભાજપના એકલાના નથી જ, કરોડો હિન્દુઓના તે આરાધ્ય છે। પરંતુ હાર્દિકની આ તસવીર જેમાં તેમની રામ ભક્તિ દેખાય છે, તેનાથી ભાજપ જાણે ગભરાયું હોય તેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। ભાજપની એક પાંખ જેવી રામ સેવા સમિતિ દ્વારા 30મી એપ્રિલ અને 1લી મેના રોજ 2 દિવસો દરમિયાન રામ ભક્તિનો વધુ એક કાર્યક્રમ તાબડતોબ આયોજિત કરી નાખ્યો છે। રામ સેવા સમિતિ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા કાર્યક્રમ અનુસાર જાણીતા કવિ અને કટાક્ષકાર કુમાર વિશ્વાસના અપને અપને રામ નામથી આ 2 દિવસીય કાર્યક્રમ યોજાશે। જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાનારા આ કાર્યક્રમ માટે સમિતિ દ્વારા ફ્રી પાસની પણ વ્યવસ્થા કરાઈ। એટલું જ નહીં, આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ તેમજ અન્ય આગેવાનો અને મંત્રીઓ પણ હાજર રહેશે તેવું જણાવાયું છે। પ્રજા અને રાજકીય નિરીક્ષકોમાં ચર્ચાતો પ્રશ્ન એ છે કે હાર્દિકની રામ ભક્તિથી ભાજપ ગભરાયો કે શું? હાર્દિક દ્વારા તેમના પિતાના યોજાયેલા શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમની તુરંત જ બાદ ભાજપને ફરીથી અચાનક ભગવાન રામ કેમ યાદ આવ્યા? અધૂરામાં પૂરું આ સમગ્ર આયોજનની માહિતી આપવા માટે ખાસ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું પણ આયોજન કરાયું હતું। જો કે પાછળથી ભાજપના પ્રવક્તા યજ્ઞેશ દવે દ્વારા જાહેર કરાયેલી પ્રેસ યાદી દ્વારા આ કોન્ફરન્સ રદ કરાઈ હોવાનું જાણવામાં આવ્યું છે। જો કે તેની પાછળનું કોઈ કારણ જણાવાયું નથી। પ્રેસ કોન્ફરન્સ અચાનક કેમ રદ કરાઈ તે પણ એક મોટો પ્રશ્ન છે। તાબડતોબ અપને અપને રામ કાર્યક્રમનું આયોજન કેમ કરાયું? ચૂંટણી આવીને હાલ લોકોને રામ યાદ આવ્યા છે।
હાર્દિકની રામ ભક્તિથી ભાજપમાં ફફડાટ હોય તેવું પણ જોવા મળી રહ્યું છે। અનેક પ્રશ્ન ઊભા થઈ રહ્યા છે ને જે પ્રમાણે હાર્દિકની પિતાની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે રામનો ફોટોનો એક વિડીયો અને ફોટો વાયરલ થયા છે, ત્યારે તાબડતોબ अपने अपने राम કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું છે। हाल पीएम मोदी संबोधन करी रहा है, सीधा जईशु त्या। कुछ न कुछ नए विचार भी निकले हैं, लेकिन ये इस बार ये जो आयोजन अपने आप में और भी ज्यादा खास है। आज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय में हो रही है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही रोल्स और रिस्पांसिबिलिटीज को निरंतर स्पष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हुआ देश को दिशा देने के लिए ये रिलेशन लगातार इवॉल्व हुआ है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश नए अमृत संकल्प ले रहा है, नए सपने देख रहा है, तो हमें भी भविष्य की तरफ देखना होगा। 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे। हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके, ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। साथ ही जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी देश में व्यापक काम हो रहा है। इसमें राज्यों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं यहां उपस्थित सभी मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के सभी चीफ जस्टिस से भी आग्रह करूंगा कि इस अभियान को विशेष महत्व दें, इसे आगे बढ़ाएं। डिजिटल इंडिया के साथ जुडिशरी का ये इंटीग्रेशन आज देश के सामान्य मानवी की अपेक्षा भी बन गई है। आप देखिए, आज कुछ साल पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन को हमारे देश के लिए
असंभव माना जाता था। लोगों को लगता था, लोग शक करते थे, अरे ये हमारे देश में कैसे हो सकता है। और ये भी सोचा जाता है इसका स्कोप केवल शहरों तक ही सीमित रह सकता है, उससे आगे बढ़ नहीं सकता है। लेकिन आज छोटे कस्बों और यहां तक गांवों में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन आम बात होने लगी है। ये पूरे विश्व में पिछले साल जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए उसमें से 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुए हैं। सरकार से जुड़ी वो सेवाएं जिनके लिए पहले नागरिकों को महीनों ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, वो अब मोबाइल पर अवेलेबल हो रही है। ऐसे में स्वाभाविक है जिस नागरिक को सेवाएं और सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं, वो न्याय के अधिकार को लेकर भी वैसे ही अपेक्षाएं करेगा। साथियों, आज जब हम टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं तो इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टेक फ्रेंडली ह्यूमन रिसोर्सेज भी है। टेक्नोलॉजी आज युवाओं के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यह हमें सुनिश्चित करना है कि युवाओं की एक्सपर्टाइज, उनकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ कैसे बने। आजकल कई देशों में लॉ यूनिवर्सिटीज में ब्लॉकचेन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायो एथिक्स जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे देश में भी लीगल एजुकेशन इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, अर्थात किसी भी देश में सुराज का आधार न्याय होता है। इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को सामान्य मानवी नहीं समझता, उसके लिए न्याय और राजकीय आदेश में बहुत फर्क नहीं होता है। मैं इन दिनों सरकार में एक विषय पे थोड़ा दिमाग खपा रहा हूं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलॉजी में कानून होता है, लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोक भाषा में होता है, सामान्य मानवी की भाषा में होता है, और दोनों मान्य होते हैं। और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भाषा में, और वो भी दोनों एक साथ असेंबली में या पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है। दुनिया के कई देशों में ये परंपरा है। अभी मैंने एक टोली बनाई है, वो उसका अध्ययन कर रही है। साथियों, हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही इंग्लिश में होती है। और मुझे अच्छा लगा सीजेआई ने स्वयं ने इस विषय को स्पर्श किया, तो कल अखबारों को पॉजिटिव खबर का अवसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो। लेकिन उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा
वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अब इन समय हम एक कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन मातृभाषा में क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं दुनिया की वो भाषा कोशिश करते हैं पढ़ करके फिर मेडिकल कॉलेज की, तो हम हमारे देश में कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कई राज्यों ने मातृभाषा में टेक्निकल एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। तो आगे चल करके उसके कारण गांव का गरीब का बच्चा भी जो भाषा के कारण रुकावटें महसूस करता है उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये भी तो एक बड़ा न्याय है, ये भी एक सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय के लिए न्यायपालिका के तराजू तक जाने की जरूरत नहीं होती है, सामाजिक न्याय के लिए कभी भाषा भी बहुत बड़ा कारण बन सकती है। एक गंभीर विषय सामान्य आदमी के लिए कानून की पेचीदगियां भी है। 2015 में हमने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक हो चुके थे। इनमें से जो केंद्र के कानून थे ऐसे 1450 कानूनों को 1450 कानूनों को हमने खत्म किया, लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए हैं। मैं आज सब बड़ी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण यहां बैठे हैं, मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों के लिए, उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके यहां भी ये कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है, काल बाह्य कानूनों में लोग फंसे पड़े हैं, उन कानूनों को निरस्त करने की दिशा में आप कदम उठाइए। लोग बहुत आशीर्वाद देंगे जी। साथियों, न्यायिक सुधार केवल एक नीतिगत विषय या पॉलिसी मैटर ही नहीं है। देश में लंबित करोड़ों केसेस के लिए पॉलिसी से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर संभव प्रयास देश में हो रहे हैं और हमने बार बार इसकी चर्चा भी की है। इस कॉन्फ्रेंस में भी आप सब एक्सपर्ट्स इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे ही, ये मुझे पर विश्वास है। और मैं शायद बहुत लंबे अरसे तक इस मीटिंग में बैठा हुआ हूं, शायद जजेस को ऐसी मीटिंग में आने का जितना अवसर मिला होगा उससे ज्यादा मुझे मिला है, क्योंकि मैं कई वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में इस कॉन्फ्रेंस में आता रहता था। अब यहां बैठना मौका आ गया है तो यहां से आता रहता हूं, तो एक प्रकार से मैं इस महफिल में सीनियर हूं। साथियों, इस विषय में जब मैं बात कर रहा था तो मैं मानता हूं कि इन सारे कामों में मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हुई है। मानवीय संवेदनाओं को भी हमें केंद्र में रखना ही होगा। आज देश में करीब 3.5 लाख प्रिजनर्स ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल है और जेल में है। इनमें से अधिकांश लोग गरीब या सामान्य परिवारों से। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है ताकि इन केसेस की समीक्षा हो सके, जहां संभव हो बेल पर उन्हें रिहा किया जा सके। मैं सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के जजेस से अपील करूंगा कि मानवीय संवेदनाओं, उन संवेदनाओं और कानून के आधार पर इन मामलों को भी अगर संभव हो तो प्राथमिकता दी जाए। इसी तरह न्यायालयों में और खासकर स्थानीय स्तर पर लंबित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता, मीडिएशन भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। हमारे समाज में तो मध्यस्थता के जरिए विवादों के समाधान की हजारों साल पुरानी परंपरा है। आपसी सहमति और परस्पर भागीदारी, ये न्याय की अपनी एक अलग मानवीय अवधारणा है। अगर हम देखें तो हमारे समाज का वो स्वभाव कहीं न कहीं
अभी भी बना हुआ है। हमने हमारी उन परंपराओं को खोया नहीं है। हमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत है। और जैसे चीफ साहब ने ललित जी की तारीफ की, मैं भी करना चाहूंगा। उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, हर राज्य में गए इस काम के लिए, और सबसे बड़ी बात है कोरोना काल में गए। साथियों, मामलों का कम समय में समाधान भी होता है, न्यायालयों का बोझ भी कम होता है, और सोशल फैब्रिक भी सुरक्षित रहता है। हमने इसी सोच के साथ संसद में मीडिएशन बिल को भी एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी पेश किया है। अपनी रीच लीगल एक्सपर्टाइज के साथ हम मीडिएशन से सॉल्यूशन की विधा में ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। हम पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल पेश कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि प्राचीन मानवीय मूल्यों और आधुनिक अप्रोच के साथ इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे सभी विषयों पर आप सब विद्वज्जन विस्तार से चर्चा करके, मंथन करके उस अमृत को लाओगे जो शायद आने वाली पीढ़ियों तक काम आएगा। इस कॉन्फ्रेंस में जो नए आइडियाज निकलेंगे, जो नए निष्कर्ष निकलेंगे, वो नए भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बनेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबके मार्गदर्शन के लिए मैं आपको आभारी हूं, और मैं सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि देश के न्याय व्यवस्था के लिए सरकारों ने जो करना होगा, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वो भरसक प्रयास करेगी ताकि हम सब मिलकर के देश के कोटि कोटि नागरिकों की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण कर सके। और 2047 में देश जब आजादी के 100 साल मनाए, तब हम न्याय के क्षेत्र में भी और अधिक गौरव के साथ, और अधिक सम्मान के साथ, और अधिक संतोष के साथ आगे बढ़े। यही मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी प्रेरणा के लिए। और अब हमारा अनुरोध है माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी से कि कृपया आभार प्रकट करें। નજર કરી આગળના સમાચાર પર તો યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિમીર ઝેલેન્સ્કીએ જણાવ્યું હતું કે કીવ ક્ષેત્રમાં લગભગ 900 લોકોની સામૂહિક કબર મળી આવી છે। પોલિશ મીડિયા સાથેની મુલાકાતમાં ઝેલેન્સ્કીએ જણાવ્યું હતું કે યુક્રેન કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓને રશિયન હસ્તકના પ્રદેશના એક ભાગમાં બીજી મોટી સામૂહિક કબર શોધી કાઢી હતી। યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિએ દાવો કર્યો હતો કે સરકારનો અંદાજ છે કે युद्ध दरमियान लगभग 1.5 मिलियन यूक्रेनियन नागरिकोने गैरकायदेसर रीते रशिया मोकलवामां आव्या हता। केटला लोकोना मौत थया छे ते कोईने खबर नथी। यूएस डिफेन्स हेडक्वार्टर पेंटागोने कह्युं छे के પાકિસ્તાનમાં 61 વર્ષ જૂના રેકોર્ડ તોડતી ગરમી વચ્ચે ત્રાહિમામ પોકારી ગયેલી જનતાને બેવડો ફટકો પડ્યો છે। સ્થાનિક મીડિયાના અહેવાલો અનુસાર દેશમાં જબરદસ્ત હીટવેવની સ્થિતિ છે। ઘણા વિસ્તારોમાં તાપમાન 48 ડિગ્રીને પાર પણ પહોંચી ગયું છે, જેના કારણે વીજ માંગમાં એકાએક વધારો થતા વીજ તંત્ર નિષ્ફળ ગયું છે। પરિણામે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં 18 કલાક જ્યારે શહેરોમાં 12 કલાક વીજ પુરવઠો ખોરવાયો છે। સૌથી વધુ પાવર કટ ખૈબર
પુખ્તનવા વિસ્તારમાં થઈ રહ્યો છે તે પછી કરાચી, સિંધ અને બલુચિસ્તાન પ્રાંતમાં પણ મોટા પાયે વીજ કાપ છે. રાજધાની ઇસ્લામાબાદ અને તેની આસપાસના રાવલપિંડી અને બીજા સૌથી મોટા શહેર લાહોરમાં હજુ પણ પાવર કટમાં થોડી રાહત છે, પરંતુ અહીં પણ 6 થી 10 કલાક સુધી વીજળી નથી. સ્થાનિક મીડિયાના અહેવાલો અનુસાર આર્થિક સંકટમાં ફસાયેલી સરકાર તેલ અને ગેસની પૂરતી વ્યવસ્થા કરવામાં સક્ષમ નથી. તેમની અછતને કારણે થર્મલ પ્લાન્ટ બંધ થઈ રહ્યા છે અને વીજ ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે વીજ પુરવઠો માંગને પહોંચી વળવા સક્ષમ નથી. વિદ્યુત વિભાગના એક અધિકારીએ ટાંકીને વર્તમાનમાં વીજ ઉત્પાદનમાં 7 થી 8,000 મેગાવોટનો ઘટાડો થવાની માહિતી આપી. આ અધિકારીએ ગરમીમાં વધારો અને વરસાદ નહીં થવાના સંજોગોમાં આગામી થોડા દિવસો દરમિયાન સ્થિતિ વધુ વણસી જવાની ભીતિ વ્યક્ત કરી છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પાવર કટની અસર બિઝનેસ અને ફેક્ટરીઓ પર પણ પડી છે. કાળઝાળ ગરમી અને ગરમીની લહેર વચ્ચે ઘણા રાજ્યો હાલમાં વીજ સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. દેશના 12 થી વધુ રાજ્યોમાં વીજળીની માંગ અત્યારે સુધીના તમામ રેકોર્ડ તોડી છે. ખુદ ઉર્જા મંત્રાલયે આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર દેશમાં પીક પાવર ડિમાન્ડ ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગયો છે. મંત્રાલયે એક ટ્વીટમાં જણાવ્યું હતું કે શુક્રવારે બપોરે 2:50 સર્વકાલીન ઉચ્ચ માંગ 2,07,111 મેગાવોટ પર પહોંચી ગઈ છે, જે અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ છે. જોશી પાવર પ્લાન્ટ્સમાં કોલસાની અછત વચ્ચે કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ કહ્યું કે કેન્દ્રીય કોલસા અને ખાણ મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ કહ્યું કે દેશભરના થર્મલ પ્લાન્ટ્સમાં 22 મિલિયન ટન કોલસો છે, જેનો 10 દિવસ સુધી ઉપયોગ કરી શકાય છે, પરંતુ આવી સ્થિતિમાં તેઓએ સંપૂર્ણ ક્ષમતામાં ઉત્પાદન કરવું જોઈએ. CCLના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર PM પ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે પ્લાન્ટને દરરોજ 2.2 લાખ ટન કોલસો સપ્લાય કરવામાં આવશે. એક રિપોર્ટ અનુસાર એપ્રિલમાં દિલ્હી, યુપી સહિત દેશના ઘણા મોટા રાજ્યોમાં આકરા તાપ અને ગરમીના કારણે વીજળીનો વપરાશ વધ્યો છે, પરંતુ મોટાભાગના પાવર પ્લાન્ટ્સને કોલસાની આયાત પર અસર થઈ છે. વીજળી ઉત્પન્ન કરો, કોલસો ઉપલબ્ધ નથી. કહેવામાં આવ્યું છે કે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધના કારણે કોલસાની આયાતને અસર થઈ છે, જેના કારણે કોલસાના ભાવમાં ભારે વધારો થયો છે. જે રાજ્યોમાં વીજ સંકટની સૌથી વધુ સમસ્યા છે તેમાં ઝારખંડ, હરિયાણા, બિહાર, પંજાબ, રાજસ્થાન, દિલ્હી અને મહારાષ્ટ્રનો સમાવેશ થાય છે. હાલ સમાચારમાં આટલું જ. વધુ સમાચાર અને અપડેટ માટે જોતા રહો કે ન્યૂઝ. નમસ્કાર.